Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about the unit impulse function in the continuous domain. So let's get started. So as the name comes, the unit impulse function in the continuous time domain. So what is unit impulse function? So generally this unit impulse function is also called as the Dirac delta function. Sometimes it is also called the impulse function. So और भी नाम है इसका, कभी कभी इसको Dirac delta function भी बोला जाता है. This is the another name and it is denoted by del of t. So del t denotes the unit impulse function in the continuous time domain, which is also called the Dirac delta function. And this del t is defined by its area. This is defined by the area. So what is the definition? Definition क्या है इसका? Definition है कि del t का जो magnitude होगा, that magnitude is infinite when t is equals to 0 and the magnitude will be 0 when t is not equals to 0. So this is the basic definition of the unit impulse function. अब मैंने पहले ही बोला था कि del t is defined by its area. So why it is defined by its area? Because ये जो मेरा del t है जिसका ये सारी चीज क्या है? These are the magnitude. These are the magnitude of this del t. Now if I want to talk about the del t about its area, that means the del t value or del t signal will have unit area. It will have a unit area always. This is the most important thing कि जो मेरा unit impulse function होगा, that unit impulse function will always have a unit area, but its magnitude is infinite at t equals to 0 and its magnitude is 0 at t not equals to 0. So आपका graph क्या होगा? So if this one denotes the del t and if this is the time axis, generally ये जो मेरा del t होगा, that looks like this कि it has a magnitude of infinite but the area will be 1. So this is t equals to 0. So you can see that at t equals to 0 the del t will have a magnitude infinite but its area is 1, and when the t is not equals to 0 then all the values will be 0. So this black graph is the del t. So now ये जो मेरा del t आया, तो del t का पहला प्रॉपर्टी है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये del t क्या है? del t आपका एक यूनिट एरिया वाला फंक्शन होगा and its magnitude will be infinite at t equals to 0 and 0 for other cases. Now ये del t को कैसे, since ये जो del t है, ये del t का एरिया क्या है? Its area is 1 and magnitude is infinite. So we can say that in practical cases, actually this del t is an ideal signal. You can imagine this del t in the theoretical way, but in the practical cases you cannot get the del t because इसका magnitude क्या है? Infinite. और प्रैक्टिकली हम लोग कोई सिग्नल का मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल केसेस में हम लोग del t को प्रैक्टिकल केसेस में हम लोग del t को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? प्रैक्टिकली क्या किया जाता है? सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंप्लीमेंट the del t or how to get del t in the practical cases. So for that purpose क्या होगा कि आपको पहले एक स्क्वायर फंक्शन लेने होंगे. You have to take a square function. स्क्वायर फंक्शन क्या है? सपोज आपके पास एक xt होगा और this is the time axis. Suppose I am taking a square function like this. So this is minus t suppose and this is plus t and the area or magnitude is capital A. Suppose this is an xt. Now what we will do to get the practical unit impulse function,
what do we need to do? We need to apply the limiting process. What do we need to apply? We need to apply the limiting process. So using this limiting process we can get the practical unit impulse function. तो practical unit impulse function में we'll use this property कि del t का जो यूनिट एरिया होगा वो यूनिट होंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली कोई भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड तो मैं इन्फिनिट नहीं कर सकता हूं. सो थियोरेटिकल जो वैल्यू है t इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इन्फिनिट, ये मैं नहीं कर सकता हूं, मगर एरिया से मैं डिफाइन कर सकता हूं. क्या करना है? सो लिमिटिंग प्रोसेस क्या है? लिमिटिंग प्रोसेस का मतलब I can write the value of del t practically, that is limit capital T tends to 0 xt. So this is the limiting process. That means ये जो मेरा t वैल्यू है, ये t वैल्यू को मैं धीरे धीरे जीरो की तरफ शिफ्ट करूंगा. तो जीरो की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या वैल्यू हो सकता है? सपोज ये जो सिग्नल होगा, तो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल का सपोज आई एम डिक्रीजिंग द टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन मैंने डिक्रीज किया, तो ऐसे डिक्रीज करना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपका यूनिट होना चाहिए. सो दैट मीन्स ये जो xt है, यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड a है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे छोटा सा किया, यहाँ पे मैंने आया, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन. फिर से मैंने इसको और छोटा किया, और छोटा किया, फिर से मैं इसको और छोटा कर सकता हूं. सो धीरे धीरे इस तरीके से मैं ये जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन को स्क्वीज करते हुए एक डेल टी निकाल सकता हूं कि मेरा जो ये जो एरिया है, ये एरिया 1 होना चाहिए, यूनिट एरिया होना चाहिए. अब देखो, ये तो मैंने स्क्वायर जो पल्स है, स्क्वायर पल्स से निकाला है, तो इसको मैं ट्रायंगुलर पल्स से भी निकाल सकता हूं लिमिटिंग प्रोसेस यूज करके. कैसे? सिमिलरली I am not going into the details, just I am giving the information कि यहाँ पे मेरा t है और एक सिग्नल है सपोज xt. So let us take a triangular signal. Suppose I have a triangular signal. So let's take a triangular signal, and this triangular signal looks like this. So this is minus t and this is capital T, suppose, and it has some magnitude capital A. Suppose it has a magnitude capital A. Now I will squeeze the time duration. ये वाले टाइम ड्यूरेशन को धीरे धीरे छोटा करूंगा. सो धीरे धीरे अगर छोटा करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा. सो इट विल हैव, बिकॉज मुझे एरिया को यूनिट करना है, तो ये पहला वाला सिग्नल, देन विल हैव दिस टाइप ऑफ सिग्नल इन दिस वे. आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे ये टाइम ड्यूरेशन को छोटा कर रहा हूं, इसी के कारण मेरा यूनिट इंपल्स यहां पे प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन प्रोड्यूस द यूनिट इंपल्स फंक्शन इन द कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन. बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि ये जो डेल टी का डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, थियोरेटिकल डेफिनेशन, जहां पे मेरा मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है एट t इक्वल्स टू 0. बट प्रैक्टिकली एट t इक्वल्स टू 0 पे कोई भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हम लोग नहीं कर सकते. इसीलिए हम लोग जो डेल टी प्रैक्टिकली ढूंढ सकते हैं वो लिमिटिंग प्रोसेस को यूज करके कर सकते हैं. तो दिस इज द लिमिटिंग प्रोसेस बाय व्हिच व्हेन द कैपिटल T टेंड्स टू 0 फॉर द स्क्वायर पल्स, और ट्रायंगुलर पल्स के लिए भी मैं कर सकता हूं. सो दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन फाइंड द यूनिट इंपल्स फंक्शन फॉर अ प्रैक्टिकली. Now let's see some properties, or let's see some natural properties of del t. So let's look some characteristics of the del t. The first characteristics is del t is the only function represented by its area. So मैंने बोला था कि del t आपका जो यूनिट इंपल्स फंक्शन होंगे, that unit impulse function is the only function that will be defined by its area. इसका एरिया कितना होता है? The area is 1, मतलब unit area. The second property or second characteristics, better you say, the practically we cannot generate del t because of the infinite magnitude at t equals to 0. Because unit impulse function का जो magnitude होगा at t equals to 0 पे वो होगा infinite.
and in practical cases we cannot generate the del t because of this infinite magnitude. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि del t will be defined practically by its unit area. यूनिट एरिया को डिफाइन करते हुए हम लोग प्रैक्टिकली del t को डिफाइन करते हैं. उसके लिए मुझे लिमिटिंग प्रोसेस यूज करना होगा. वी हैव टू यूज द लिमिटिंग प्रोसेस ऑन द रेक्टेंगुलर सिग्नल. रेक्टेंगुलर सिग्नल के ऊपर मैं लिमिटिंग प्रोसेस यूज कर सकता हूं और ट्रायंगुलर सिग्नल के ऊपर भी हम लोग लिमिटिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं. सो लिमिटिंग प्रोसेस कैसे यूज करेंगे कि आपका जो del t होगा, that del t can be defined by limit t tends to 0 of xt. xt either it will be rectangular signal or triangular signal. अब देखो मैंने कैसे डिफाइन किया. ये मेरा सपोज एक xt है, अब रेक्टेंगुलर, सपोज दिस इज एन रेक्टेंगुलर सिग्नल. सो ये जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ये रेक्टेंगुलर सिग्नल में मैं क्या करने वाला हूं कि लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू 0 ऑफ xt ढूंढने वाला हूं. तो ये मेरा 0, ये कैपिटल T. सो कैपिटल T को धीरे 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 मैं 0 की तरफ शिफ्ट करूंगा. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज द मैग्नीट्यूड इज 1 by t. So if the magnitude is 1 by t, then what will happen? So what will be the area of this square pulse? तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा width कितना है? कैपिटल T. यहाँ से हाइट कितना है? ये वाला हाइट कितना होगा? This height will also capital 1 by t. So area magnitude is 1 by t. So 1 by t into capital T. तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 1 by t into capital T which is equals to 1. So इसका एरिया आपका 1 है, ये वाला एरिया आपका 1 है. तो एरिया यूनिट है, मतलब यूनिट इंपल्स मैं यहां से डिफाइन कर सकता हूं. अब मैंने क्या किया कि ये जो कैपिटल T है, ये कैपिटल T को धीरे धीरे शिफ्ट किया 0 की तरफ, जैसे कि मेरा एरिया यूनिटी रहे. एरिया चेंज होना नहीं चाहिए, एरिया हमेशा यूनिट इंपल्स होना, यूनिट एरिया होना चाहिए. तो इसको मैं इधर अगर शिफ्ट करूंगा तो मेरा जो विड्थ है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा हाइट इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि एरिया तो मुझे पहले जैसा चाहिए. तो इसीलिए यहां पे अगर आते हैं कैपिटल T तो ये वाला सिग्नल होंगे. देखिए हाइट थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर से मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्वीज करूंगा तो यहां पे आएंगे. तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द यूनिट इंपल्स फंक्शन बाय लिमिटिंग द कैपिटल T टेंड्स टू 0. सिमिलरली मैं यहां पे भी डिफाइन कर सकता हूं. तो क्या है कि यहां से जो सिग्नल है xt, इसका जो एरिया है मैग्नीट्यूड है वो 1 by t. तो इसका एरिया क्या होगा? t इंटू 1 by t, मतलब 1 एरिया. अब देखो ये वाले माइनस t को मैं धीरे धीरे इधर शिफ्ट करूंगा, तो पहले यहां आ जाएंगे, तो यहां पे आएगा, तो मेरा हाइट थोड़ा इंक्रीज होंगे क्योंकि एरिया मेरा यूनिट होना चाहिए. फिर से मैं इसको और स्क्वीज किया तो हाइट और ऊपर जाएगा. तो इसी तरीके से हम लोग यूनिट इंपल्स को डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन डिफाइन अ यूनिट इंपल्स फंक्शन इन अ कॉन्टिन्यूअस डोमेन. कॉन्टिन्यूअस डोमेन में यूनिट इंपल्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड और टू नोट दैट कि यूनिट इंपल्स का थियोरेटिकल डोमेन में मैग्नीट्यूड हमेशा इनफाइनाइट होगा एट t equals to 0, but its area is unity. This is the only signal that is defined by its area. So hopefully you have understood the unit impulse function in the continuous domain. Thank you for watching the video.